Good afternoon, doctors. Welcome to all an interesting educational session on dementia management. Myself, Dr. Anil Wadhwani, working as a consultant psychiatrist and assistant professor in Institute of Behavioral Sciences, Dow University of Health Sciences. This education meeting is organized by Genix Pharmaceutical. Genix Pharma was founded in year 2004. They have vision to help and provide top quality and affordable medicine for all those in need. Just like doctors, Genix remain committed to improving the lives of people associated with us at all levels. Today, our session is part of awareness campaign on good mental health, and presentation topic is how to diagnose and deal with dementia and its impact on caregiver. Dementia refers to a range of disorders characterized by declining memory, multiple cognitive deficits, and eventually mortality due to progressive and irreversible brain damage. Disease entities comprising dementia characteristically affect mainly the geriatric population. Together, they constitute a major component of global disease burden in general and geriatric disease burden in particular. In 2005, it was estimated that 24.3 million people in the world were living with dementia. 4.6 million cases have been added each year ever since. Overall, dementia contributes 11.3% of years of life lived with disability, making it a major contributor to worldwide morbidity. As the world's sixth most populous country, Pakistan faces a stiff challenge of managing an aging population in the years ahead. I would like to introduce our presenters and panelists. Our first presenter is Dr. Fowzia Siddiqui. Her topic is how to deal with dementia. Dr. Fowzia Siddiqui is well-known consultant neurologist and working in Aga Khan University and Hospital. Today, our second presenter, our mentor, Professor Muhammad Iqbal Afridi. He is a renowned consultant psychiatrist, Dean, Faculty of Psychiatry, College of Physician and Surgeon, Pakistan. Adjunct Professor, Baylor College of Medicine, USA. And his topic will be psychological behavior and caregiver burden in dementia management. And our panelist will be Professor Dr. Khalid Mahmud Khan, consultant physician and gastroenterologist, Jinnah Hospital, Lahore, Allama Iqbal Medical College, Lahore, Lahore Doctors Hospital and Medical Center. He is President Pakistan American Iqbalian Welfare Society and also President of Pakistan Society of Fraternal Medicine, Lahore chapter. He has more than 25 publications in his name. Dear doctors, if there is any question, please drop your question in the chat box. Question and answer session will be held after presentation. Over to you, madam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. So, how to deal with dementia. ये topic जब मुझे दिया गया Genix Pharma ने, and one of the reasons is that they brought a very cheap, cheaper than the other drugs that are available. I won't say really cheap, but rivastigmine. तो उन्होंने जब टॉपिक दिया हाउ टू डील विद डिमेंशिया, मेरे जहन में वो दुआ आई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबको सिखाई कि ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज विद यू फ्रॉम कावर्डिस, बुज़दिली से, माइजरलीनेस, बुखल से, एंड फ्रॉम बीइंग सेंट बैक टू अ फीबल एज, यानी मुझे वापस एक बचपने की उसमें मुझे डिमेंशिया से तो पनाह मांगी है अल्लाह से इसकी. तो anyway, so what is dementia and Alzheimer's disease? Dementia is actually, it's a syndrome. It's not just one disease. It's an umbrella जिसमें के सारे किस्म की जो भूल की बीमारी होती है, ठीक है. And इसका जो Alzheimer's जो है, this is here if you can see in the corner, is Alzheimer's. So he was the first one who described that and suffered from it. And so basically what happens in this, it's not normal aging. जो हम कहते हैं ना, बस age factor है. तो dementia, Alzheimer's is not age factor. ठीक है, age के साथ होता है, but that does not mean that everybody over the age of 60 is going to get that. Some get it and some don't. So that is why it is not normal aging. Impaired intellectual functioning होती है इसमें, that is with daily activities and personal relationships. Memory loss होता है,
पुरानी बातें याद रहती हैं, हालिया बातें जो है, you can't form new memories basically. You forget immediate things. Have difficulty. Slowly you start forgetting. जैसे बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, उसने कुछ नहीं सीखा होता, ऐसा ऐसा बोलना मामा पापा दादा, फिर पहचानना शुरू होता है, रिश्तों को करता है, तो ये सारी चीजें जो है ना रिवर्स में चली जाती हैं. सो द रिवर्स पैटर्न इज डिमेंशिया, एंड उसी का जो है कि रिवर्सिंग में से पनाह मांगी गई है. तो अगर आप माहिरीन देखें दुनिया भर के WHO के, तो कहते हैं कि हर 3 सेकंड में एक इंसान डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी में मुब्तला हो जाता है. तो इसकी जो जल्दी तशखीस है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दैट इज हाउ वी कैन हेल्प आवर पेशेंट्स by diagnosing it early. But we can only diagnose it early if the patients will come to us early. वरना तो वो काफी टाइम तो वो यही एज फैक्टर और इस सारे इसमें गंवा देते हैं. तो dementia is not, again, to emphasize and re-emphasize, it is not a normal part of the aging process. Unlike normal age-related memory changes, dementia gets worse with time. तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो जैसे द लेटेस्ट सिम्टम्स ऑफ इम्पेयर्ड जजमेंट, डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन, बिहेवियर चेंजेस, डिफिकल्टी स्पीकिंग, स्वॉलोइंग, वॉकिंग, तो आपके अपने वालिदैन या बुजुर्ग जिन्होंने आपको अपने हाथों से पाला, आपको खाना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, आज वो उसी कैफियत में जा रहे हैं, वो पहचान भी नहीं पा रहे, उनको कपड़े भी पहनाने हैं, उन्हें सहारे से चलाना भी है, और ये करना बहुत तकलीफ भी होता है कि इतने वो मजबूत हाथ जिनके हाथों में आकर सारी दुनिया का गम जो है वो इंसान भूल जाता, आज वो नहीं नातवान हुए हैं. तो ये चीज जो है ना, ये बहुत ही तकलीफ दे होती है, और इस पे डॉक्टर इकबाल आफरीदी आपको केयर गिवर बर्डन और उनको कितनी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, इस पे बात करेंगे. यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये बात बताई थी कि देखें, सूरह हज की आयत है, आयत नंबर 5. तो इसमें ये है ना कि then we settle whatever embryo we will in the womb, यानी हम बच्चे को पैदा करते हैं, फिर उसके मुकर्रर वक्त पे उसको निकालते हैं, फिर इन्फेंट्स होते हैं, फिर वो प्राइम पे होते हैं, जवानी के मजे में, ठाट बाट में, फिर जो है कुछ जवानी में खत्म हो जाते हैं जिनके नसीब में नहीं होता, और उनमें से कुछ जो है वो एज पे पहुंचने के बाद ऐसे हो जाते हैं कि वो वापस इन्फेंट्स बन गए, और ये है वो डिमेंशिया. और ये कि कुछ को होता है, हर किसी को नहीं होता. So that is why it is a disease. It is a condition. So what these symptoms mean to a person with dementia? अगर जिसको डिमेंशिया है, जिसको अब एल्जाइमर्स का डायग्नोसिस मिल गया है, उसको इस वक्त उसको पता है. हमारे माशरे में एक इशू है, वो ये कि शु इनको नहीं बताइए, हम वो करेंगे ना. And that later on causes a lot of confusion. Let the patient know कि उसका क्या वो है, ताकि वो जो है वो उस हिसाब से अपनी जिंदगी की सारी चीजें, सब चीजों को वाइंड अप और जो भी करना है वो करें. Because slowly and progressively they will start to forget. Personality and mood changes आएंगे, isolation, depression, loss of independence हो जाएगा. So उससे पहले वो अपनी सब चीजों को, सबको वो कर सके. तो I think there should be an in between something. जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ एक डिजीज नहीं है, इट्स अ सिंड्रोम, इट्स अ कॉन्स्टिलेशन, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म जो कि मेमोरी लॉस को कहते हैं, जिसमें अल्जाइमर्स, देयर आर लाइक 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशियाज, एंड अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया विद लीवी बॉडी, डिमेंशिया विद पार्किंसंस डिजीज डिमेंशिया, हंटिंगटन्स डिजीज, क्रूजफेल्ड-याकूब डिजीज, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो अल्जाइमर्स है, फिर वैस्कुलर है, और फिर पार्किंसंस का है. तो इसके जो है ना कंटिन्यूम जो है बेसिकली कॉग्निटिवली अनइम्पेयर्ड, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, MCI जिसे कहते हैं, फिर माइल्ड डिमेंशिया एंड मॉडरेट डिमेंशिया, और फिर एक्चुअल डिमेंशिया होता है. ठीक है, MCI इज अ नोन रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया. अगर हल्की हल्की भूल हो रही है ना, तो प्लीज चेक करवाएं, करें कि
क्या वजह है, क्या चीज है, किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड में शॉर्ट टर्म मेमोरी जाती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन टाइप होता है, जजमेंट में मिस्टेक्स करने लगते हैं, जैसे वो यही चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और अब फिर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है तो मॉडरेट हो जाता है। और फिर जब कुछ नहीं पहचान रहे होते, जब फुल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी, यानी कपड़े पहनना भी भूल जाते हैं, कैसे पहने, एक ही आस्तीन को दो दो दफा कर रहे हैं और इस तरह की चीजें, तो वो फिर सिवियर स्टेज ऑफ डिमेंशिया हो जाता है। इसमें दो तीन चीजें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अमेरिकन विद अल्जाइमर्स डिजीज आर वुमेन। तो वुमेन में प्रीपॉन्डरेंस ज्यादा है। इनके हिसाब से जो है ब्लैक्स एंड हिस्पैनिक अमेरिकन में डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर रिस्क है अल्जाइमर्स का। हालांकि अगर देखा जाए तो एथनो-रेशियल जितनी भी स्टडीज है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, एंड दे आर ऑलवेज अंडर रिप्रेजेंट। आई एम नॉट श्योर हाउ मच क्रेडिट टू गिव टू दैट। हेल्दी एंड पैथोलॉजिकल एजिंग आप देखें कि अगर आप अक्रॉस द लाइफ स्पैन आपके रिस्क फैक्टर्स सिर्फ अगर फर्स्ट डिग्री फैमिली हिस्ट्री है तो आपको अल्जाइमर्स होगा। लेकिन अगर अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल मिसयूज, अब्यूज, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हैं, अगर आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, वैस्कुलाइटिस, वैस्कुलर छोटे छोटे क्लॉट्स बन रहे हैं दिमाग में, स्मॉल वेसल डिजीज हो रही है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ये सारी रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ इवेंचुअल डिमेंशिया है। तो हम आज अपनी लाइफ को अच्छा कर लें, आगे जाके हमारी जहन जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो जेनेटिकली पीपल रेस वाइज कहते हैं कि हिस्पैनिक्स are 1.5 times more likely to develop dementia. The ApoE gene, अगर ये है तो obviously there is a high risk for dementia. अच्छा, so if you see कि अगर आप हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखें तो हमारे यहाँ तो चेक ही नहीं होता है कि ये जीन भी टेस्ट नहीं हो पाती। सो ये कहना कि हमारे यहाँ कम है would not be a statement. It's just that we don't have the means to actually test it and see. So this is the worldwide prevalence. So it's very difficult when we're not testing something somewhere and we're testing something somewhere and we say, just on clinical means, how much is Alzheimer's, how much is pseudodementia, and how much is that in our part of the world. तो थोड़ा सा कोविड के ऊपर, चूंकि कोविड आपको पता है हमारी सबकी लाइफ्स को उसने आ गया है और इट्स हियर टू स्टे। तो अगर अमेरिका में देखें तो मोस्टली पीपल विद डिमेंशिया वर एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। तो इंस्टीट्यूशन में हुआ तो सबको हुआ है, दे आर एल्डरली एंड दे हैव अदर कोमॉर्बिड्स। सो about 42,000 deaths were attributed to Alzheimer's disease and dementia during the COVID-19 2020. This was a 16% increase in deaths of dementia in the normal time. ठीक, तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड जो है वो अगेन जो जाहिर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अफ्रो अमेरिकन का और हिस्पैनिक्स का अमेरिका में कम है, तो कोविड भी ज्यादा उधर होगा क्राउडिंग की वजह से और हो, तो इट्स काइंड ऑफ द सेम बायस आई थिंक। ओके, सो we'll just skip that and come to the etiologies as we discussed already. This is just another cartoon picture that's showing you the different etiologies and the different things and certain things that we can reverse, like our lifestyle. कोविड ने तो हमें और सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कर दिया है ना, और अपने बैठे में कंप्यूटर पे हम सारा काम कर रहे हैं, अब ना वॉक हो रही है ना कुछ, और साथ में बर्गर्स खा रहे हैं और हॉट डॉग्स खा रहे हैं और बिरयानीज एंड एवरीथिंग। तो the main point is that if you treat the minimal cognitive impairment, you treat the early dementia, you get a prolonged period of good functioning activity. तो आप इसको हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इतना ट्रीट कर सकते हैं कि अगर 5 साल बाद हमारे किसी प्यारे ने मुरझा जाना है और बिल्कुल हमें पहचानना नहीं,
तो शायद हम 5 साल और यानी 10 साल तक हम उनकी बुजुर्गी से, उनकी विजडम से फायदा उठा सकें और उसको गायब हो जाने से पहले कैप्चर कर सकें. सो दैट इज द पर्पस ऑफ ऑल दीज मेडिकेशंस. अच्छा देखिए, मेडिकेशंस 2003 के बाद कोई मेडिसिन अभी तक नहीं हुई है. अभी हुई थी लास्ट ईयर, एडुलहेम जो है ये हुई थी, लेकिन इसके साथ इतनी कंट्रोवर्सीज है एंड अपेरेंटली इट डिडंट शो वेरी गुड. अप्रूव हो गई because there really wasn't anything. It was the only drug that they say affected the amyloid, and actually amyloid को अगर ट्रायल्स और अगर स्टडीज में देखें तो बाकायदा एमिलॉइड कम हुआ है, लेकिन मेमोरी वापस नहीं. So there's something else that takes away the memory. So वो क्लिनिकली कोई इतना बेनिफिट नहीं हो रहा. हम दिखाएं जी आपका अंदर से ठीक हो रहा है, अंदर से ठीक हो रहा है, वो मुझे कुछ याद नहीं जी, आप कौन है, तो what's the point? बहरहाल the mainstay of drugs here are the acetylcholine esterase inhibitors. Tacrine. So there's tacrine, donepezil, and there's rivastigmine, and galantamine, and memantine. Memantine has a different mechanism of action. So back to Adulham. It's a bad medicine. Aducanumab जो है, इसको जो है, it's very high priced but not showing the benefit that it promised that it would show, and memory did not come back. So when I key in alzheimers.com, it says sorry, not enough memory. So basically that's so these are just little things just showing you कि Alzheimer's में क्या होता है. Alzheimer's को आप किस तरह early Alzheimer's को पकड़ेंगे, mini mental status exam करेंगे, ये उर्दू में है. इसके results जो है, collective normative data is based on 123 individual participants. तो अगर आप देखें तो education was the strongest predictor, followed by age and then acculturation. So Pakistani cutoff scores are much lower than the British cutoff scores, which are currently used as norms in the UK for all individuals who are screened. और ये क्यों? Education. So education was the thing कि इसमें जो questions और ये पूछ रहे होते हैं, मैंने ये देखा है कि जब हम अपने लेवल पे करते हैं, मैं बजाय उनसे 100-7 कहूँ, मैं उनसे कहती हूँ आपके पास 100 रुपए, आपने 7 रुपए की चीज खरीदी, आपके पास कितने पैसे बचे? शॉपिंग करते हैं सब, हिसाब फौरन आ जाता है, और वैसे आपके 100-7 जी हमें हिसाब नहीं आता. सो मेडिकेशन से हम चाहते क्या है कि वो डिजीज क्योर करें, वो प्रिवेंट करें, डिले ऑनसेट करें, स्लो प्रोग्रेशन करें डिजीज की. हमारे पास जो डिजीजेस हैं वो सिर्फ डिजीज प्रोग्रेशन को जो मेडिसिन है स्लो करती हैं. ठीक है, ट्रीट द प्राइमरी सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, ट्रीट द सेकेंडरी सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन एंड हेलुसिनेशन. ये सारी चीजों पे डॉक्टर इकबाल आफरीदी इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे. टाइम शॉर्ट है, हम लेट भी स्टार्ट हुए थे, लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस जो हैं इनमें विटामिन ए, B12 का रोल देखा गया है. जिनको बिलोबा, लेमन बाम, लेवेंडर, सेज, खमीरा गाओ जबान, और ये इसके ऊपर भी काफी सारी चीजें देखी गई हैं. ये छोटी छोटी चीजें हैं जब कुछ नहीं हो रहा. ट्यूमरिक, कर्क्यूमिन, इसके ऊपर फेज 2 ट्रायल्स चल रहे हैं इन चीजों पे. लेकिन एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है ना वो हमारे पास है जिसको हम भूल जाते हैं, और वो कुरान है. And we send down of the Quran that in which is a healing and a mercy to those who believe. We have to believe and have faith, and inshallah things will get better. Reality of the thing is that we only have cholinesterase inhibitors that can improve the quality of life of our loved ones. ठीक है? So we have to stabilize our patients, our loved ones. We have to bring them early. जितनी early लाएंगे उतना अच्छा आपका prolonged period होगा मोहताजी से बचाने का, आपको बहुत सारी चीजों से और तकलीफ से बचाने का. तो cholinesterase inhibitors में donepezil, rivastigmine and galantamine ये है हमारे पास available. ठीक है, unrealistic expectations नहीं.
मिमेंटोडिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट is affected in Alzheimer's disease. तो ये इसको enhance करता है, तो उससे तो it's a very good add-on with the acetylcholine esterase inhibitors. ठीक है, तो कब ट्रीट करते हैं? जब भी माइल्ड फॉर्म में ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, जितनी अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा. इन सारी में पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया में सिर्फ रिवास्टिग्मीन है, which is so rivastignine is actually approved for all the different types of dementias and not just Alzheimer's. ठीक है? These are some studies that are showing rivastignine, you know, and how rivastignine provides benefits in performance of ADLs. यही main चीज है हमारी कि activities of daily living में मोहताज ही नहीं हो. And it showed benefit across all stages and all disease severity stages. So it's something that you start early and you will continue to see. यानी यूं जाने के बजाय यूं करके जाएगा तो unfortunately cure नहीं है, लेकिन तो in the treatment of dementia with Lewy body disease, इसमें भी इनकी काफी promising results आए हैं. Rivastignine occurs with mild, moderate, and the treatment response तीनों stages में. That's another study. Here's another study जिसमें कि donepezil के साथ कंपेयर किया गया है, एंड उसमें जो है seems to be providing थोड़ा सा edge है इसको कि benefit in the activities of daily living and global functioning and side effect profile. Cognitive functions in dementia, cognitive functions भी improve हुए हैं. 8-year prevalence in Parkinson's disease जो है 72% people with Parkinson's have dementia. And इसमें भी again, if you see rivastignine delays the disorientation, the deterioration of cognitive function and incidence of falls. अब जब cognitive function वो होगा तो आपके चलने का और आपके सारे reflexes भी बेहतर होते हैं. So in that way, it's a good drug that's come and is now available in Pakistan. I doubt that the other newer drug will ever come to Pakistan or that, and I doubt that it's going to have a large market because it's not giving any symptomatic relief. अंदर से चाहे वो कुछ भी कर रही हो. Vascular cognitive impairment जो होती है, जो multivascular dementia जिसे कहते हैं, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल आया है, नजर आ रहा है. इसका भी Donizept का भी, but this seems to be showing an edge in all these studies, if you can see here. And that, because of time, I'm not going to go into the details of this, but treatment with rivastignine for up to 38 weeks was safe in patients with traumatic brain injury and cognitive. चोट लग गई सर में, तो पता है एक्सीडेंट हो गया, ये हुआ, उसके बाद hemorrhage हुआ, and contusions हुए, अब memory चली गई. So this again is showing some promise in this field as well. So there's a broad spectrum where we can give this drug, inshallah. And again, Huntington's disease में भी इसको try किया गया है, ज़ाहिर है वो सारी diseases. Cognitive function in patients with schizophrenia, इसमें भी try किया गया है, and it is showing some promise. So basically, how do we give it? 1.5 milligrams twice a day for 1 week, and then increase to 3 milligrams and continue. ठीक है. oral solution भी है कि अगर जैसे उनसे swallow नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा तो आप oral solution दे सकते हैं. ठीक है. तो अगर फायदा नहीं हो रहा है या थोड़ा फायदा हो रहा है तो और या severe वो है तो you can also go up to 6 milligrams twice daily. ठीक है. There are a lot of challenges, you know, anticholinergic है तो you get these cholinergic side effects, nausea, vomiting, diarrhea, घबराहट, and all of these things. We have to remember this is not a cure. This is just improving quality of life, which is very, very important because it gives us functionality. It gives our loved ones, you know, a lot of quality time that they can spend with us and our children and share the wisdom that they have learned. Okay. So in summary, you know, it's not all that easy to
summarize these things. Adverse effects, again, आप omit करें कुछ doses, low and slow जाएं and try and overcome them. Pharmacokinetics और ये dosage है इनकी, ये इनकी prices हैं. Genix Pharma इसको Revim के नाम से लेके आई है. courtesy उन्हीं की ये slide है और ये इसकी prices हैं, आप देख लें. They claim that this is the most economical price in Alzheimer's management. Even the economical price is pretty expensive, but it's better than nothing. And you know, if it gives our loved ones, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे ऊपर वो कर दी, even 2 years of good quality of life, it may be worth it. So how would you react? I will just end by this question. आप ये सोचें, अभी हम लोग ठीक हैं सब कुछ, हम अपने अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को उनको देख के जस्ट ये सोचें कि अगर हम इस पोजीशन में हो तो हम क्या चाहेंगे कि लोग हमारे साथ क्या करें, किस तरह सलूक करें, हमें क्या समझें. अरे ये तो सटिया गया, डाल दो इसे कोने में, अरे इसकी कुछ नहीं सुनो, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है. यू नो हाउ वुड बी, यू नो हमारी जब इंडिपेंडेंस को छीना जा रहा है, ये सब चीजें तो, you know, I'm not a child, stop telling me what to do. Lekin, you know, in a way, you're going back to second childishness. So whenever we counsel our patients, let's think how we would want to be treated. Thank you very much. Thank you so much, madam, for such a nice presentation. Hope, just like me, all doctors enjoyed this session. Lack of awareness about dementia is quite common in both general population as well as the physician workforce. The latter may be due to the lack of focus on geriatric medical education in medical schools, which in turn leaves medical practice to be directed or dictated by personal and cultural experience. Detection of difference between normal aging and dementia then becomes rather difficult for the non-discerning eye. Difference is usually elicited by a thorough history of primary care level. Healthcare professionals should learn how to assess patients with early signs of dementia. A focused history concerning mental function should be undertaken during all geriatric outpatient visits to aid early detection, diagnosis, and symptomatic relief. Seminars, workshops, and public awareness sessions should be arranged to increase awareness about dementia and its impact on physical and social functioning. The most common behavioral symptoms are agitation, aggression, depression, apathy, psychosis, and hallucinations, which are more disturbing to family and caregivers than memory disturbance. Common triggers are pain, fecal infection, acute medical illness, boredom, loneliness, depression, and social and environmental stressors. Caregivers of patients with dementia often suffer from depression and long-term social support to help them improve their symptoms. Our own study, unpublished data, showed that 123 out of 125, it means 98.4%, primary caregivers reported some level of distress. So caregiver distress is a prevalent problem in our setting and is significantly dependent on behavioral and psychiatric symptoms of dementia. Caregivers should be given assistance and guidance in caregiving, and periodic assessment of their own health should be performed. Professor Iqbal Afridi will discuss psychological behavior and caregiver burden in dementia management. Over to you, sir. First of all, I am very thankful to all of you, especially our worthy speakers and the organizer, for giving me this opportunity to talk about a very important area that is related to old age. So I'll be talking about psychological and behavioral issues, caregiver burden in the management of dementia. Although most of the clinical aspect has been covered by our worthy speaker, Dr. Fowzia Siddiqui, however, I'll touch some of the things which are related to the. So as you all know that as we get older, we show down both physically and mentally, and it takes longer time for normal tasks, including mental tasks like calculation and solving puzzles. It also takes longer to interpret new information, especially new information से बता दें कि उनकी मरीज आते हैं कहते हैं कि बाबा जी को तो 65 की लड़ाई याद है लेकिन नई चीज नहीं पता. हम उसको कहते हैं कि उसका हार्ड डिस्क काम सही कर रहा है
उसका रैम काम नहीं कर रहा है, उसको आप अभी समझा दें, अभी खाना खा ले याद नहीं होगा, आप उसको मोबाइल समझाने की कोशिश करें नहीं समझेगा, लेकिन वो अयूब खान का दो और फ्रांस सब बता देगा, 65 की लड़ाई क्या हुई थी बताएगा। तो खासतौर पर उनको कंप्यूटर हैंडल करना, मोबाइल हैंडल करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये देखा गया है कि जो ग्लोबली दुनिया की पॉपुलेशन चेंज हो रही है। इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, वेस्टर्न यूरोप है, उसमें तो बहुत सारे लोग जो है 25% लोग 65 ईयर्स को क्रॉस कर चुके होंगे। अच्छा, ये भी बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज में 65 अप टू 65 एज इज कंसिडर मिडल, और हमारे यहाँ 60 के बाद रिटायर कर देते हैं, जो कि बड़ा फ्रूटफुल एज होता है। एक रिसर्च की गई कि 60 से लेके 70 के दरमियान जो परफॉर्मेंस होती है बाकी दहाइयों में इतनी नहीं होती। पॉपुलेशन और उसमें अल्जाइमर डिजीज में मुब्तला होगी तो उस वक्त पेंशन कहाँ से आएंगे और दूसरी चीजें कहाँ से आएंगी। इसको देखा यह गया कि जापान में 36% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी मोर देन 65, और जो करंट पेंशन जो तरीकाकार है वो इनएडिक्वेट होगा। और दूसरा नर्सिंग कहाँ से केयर के लिए 36% पॉपुलेशन जब आपकी नॉन प्रोडक्टिव होगी, उसके लिए अभी से रोबोट बनाए जा रहे हैं कि इनकी नर्सिंग केयर कैसे होगी और फिजिशियन और वो कहाँ पूरे पड़ेंगे, और पेंशन कैसे पूरी होगी, क्योंकि सारा पैसा तो पेंशन में चला जाएगा। डिमेंशिया के मुतालिक मैडम फौजिया ने बता ही दिया कि इट डज नॉट स्पेयर एनी फैकल्टी ऑफ माइंड, इट इज ए ग्लोबल डिस्टर्बेंस ऑफ इंटेलेक्ट, जिसमें मेमोरी, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कंप्रीहेंशन, कैलकुलेशन, लर्निंग कैपेसिटी, लैंग्वेज एंड जजमेंट है, और इमोशनल कंट्रोल और सोशल बिहेवियर, मोटिवेशन भी डिस्टर्ब होती है। इसमें मैं खासतौर पर ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो बहू आ जाती है हमें कहती है कि बाबा जी मेरा दुपट्टा पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। तो उसमें ये होता है कि पॉजिटिव आता है उसमें। जैसे वो उसको हम कहते हैं कि उसको दुपट्टा खींचेंगे तो जो बेटी होती है वो तो और करीब हो जाती है, और बहू होती है वो दुपट्टा खींचती है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव होने की वजह से ऐसे लगता है कि उसने काबू कर लिया। उसका हल ये है कि उसकी तरफ छोड़ दें, उसकी तरफ ढीला कर दें तो खुद ही छोड़ देगा। बड़े मसले मसाइल इस वजह से होते हैं। उनको बताया जाता है व्हेन दे आर टोल्ड कि योर फादर और योर ग्रैंडफादर इज हैविंग डिमेंशिया, तो सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है? डिनाइल। नहीं, ये कैसे हो सकता है, इतना सही है। नोबडी इज इम्यून टू दिस कंडीशन। पेशेंट खुद अगर उसको बताया जाए कि आपको डिमेंशिया, खासतौर पर अल्जाइमर हो गया, और केयर गिवर बड़े परेशान होते हैं, तो वो डिनाइल में चले जाते हैं। और प्रोफेशनल भी बाज़ औक़ात डिमेंशिया लेवल करते हुए बड़े घबराते हैं, खासतौर पर अल्जाइमर को। और फिर लेक ऑफ रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, या अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी को ऊपर फ्लैट में रहता, उसको उतारने में बावजूद कितना मुश्किल होती, टैक्सियाँ, फिर वो तो शुक्र है ईदी एम्बुलेंस है, वरना सरकारी तौर पर तो हमारे जो एम्बुलेंस और दूसरी चीजें हॉस्पिटल हैं वो ओल्ड एज फ्रेंडली नहीं है। और फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट बड़ा आता है इसमें। इसमें अगर इफ यू लुक एट दिस स्लाइड कि नोबडी इज इम्यून टू डिमेंशिया, इसको रोनाल्ड रेगन को जो है, ऑल्दो ही वाज अ प्रेसिडेंट, जब 85 के बाद जब उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कभी प्रेसिडेंट रहा हूँ। इसी तरह हमारे पाकिस्तान की सबसे जो मशहूर पॉलिटिशियन है, उसकी वालदा को ये पता ही नहीं था कि मेरी बेटी किस पोजीशन में है। अच्छा, मैनेजमेंट जहां ताल्लुक है, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अप्रोच विच नॉट ओनली इंक्लूड, सबसे पहले एक पिलर है केयर गिवर का, जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल केयर गिवर। दूसरा है फॉर्मल केयर गिवर, जिसमें साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन मैं नर्स को पहले रखा है, और फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट सब होने चाहिए। तो उसकी, क्योंकि उसकी हाइजीन का ख्याल ना रखा गया, उसकी न्यूट्रिशन का। अच्छा, न्यूट्रिशन पे मैं बताऊं कि कई मरीज आते हैं उनको एस्पिरेटरी नमूनिया होता है, उसकी वजह क्या है कि उसको ऐसे झुक के खिलाते हैं। अच्छा, आप सबको पता होगा कि एपिग्लॉटिस जब हम यूं पीछे झुकते हैं, इस्लाम में है कि टेक लगा के खाना नहीं खाना,
और वो बड़ा ट्रू है, क्योंकि एपिग्लॉटिस चला जाता है ग़िज़ा की नाली पे और सांस की नाली खुल जाती है। तो लिहाजा ऐसे बूढ़ों को या डिमेंशिया वाले या उनको भी खाना खिलाते उसको सीधा या थोड़ा आगे होना चाहिए बजाय पीछे होने की, ताकि उसकी ग़िज़ा जो इसोफेगस है वो रास्ता खुले। तो इस वजह से दूसरी बात यह कि उनको जो कमरे में हमारे फर्नीचर होते हैं वो ऐसे चुभने वाले नहीं होने चाहिए कि वो जब कटने वाले हों। बाथरूम भी हमारे ऐसे हैं कि उसमें ऐसे रखा होता है कि ज्योमेट्रिकली कि वो उस पर अगर बंदा गिरे तो छुरी तरह काट देते हैं। तो वो बड़े फ्रेंडली होने चाहिए फर्नीचर और दूसरा चीज़। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में जो खासतौर पर हम जो केयर गिवर के हिसाब से बात करेंगे कि इसमें कॉग्निटिव इंटरवेंशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, खासतौर पर अभी ये बड़ा मुसीबत वाली चीज आने वाली है कि जब वो ट्रांजैक्शन सारा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा और वो बाबा जी ने 10 लाख ट्रांसफर करने थे, एक बटन ज्यादा दब गया, 1 करोड़ चले गए। तो इस तरीके से अगर उसके अकाउंट में होंगे तो खैर 1 करोड़ तो नहीं, लेकिन अगर वो देना चाह रहा था 1000 और उसने बटन ने और ज्यादा दबा दिया तो 10,000 चले गए, अब वापस कैसे करेगा। तो लिहाजा इनहेंस एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, खास तौर पर वो सोए कैसे, खाए कैसे, बैठे कैसे, ये सब चीजें उसके लिए हमें बतानी पड़ेंगी। और एक्सरसाइज पे मैं बता दूं कि आमतौर पर ये एग्री नहीं करते। तो हम बताते हैं कि घर वालों को, तो अगर बेटी होती है वो तो कह देती है, लेकिन जो बहू होती है वो बेचारियां, हालांकि उनके ऊपर काम भी ज्यादा होता है, लेकिन वो कहती है ये तो मानता ही नहीं है। भाई वो मानेगा तो नहीं, वो बच्चे को कैसे आमादा करते हैं आप स्कूल जाने के लिए। तो आप उसको कहें कि हरकत में बरकत है, ऐसे हाथ उसकी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूं, फिर अल्लाह अकबर अल्लाह को यूं, फिर पैरों में भी ऐसी वर्जिश करें। फिर ये जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक प्लग और फर्नीचर बड़े फ्रेंडली होने चाहिए, हाथ में डालें। फिर यूजफुल कलर होने चाहिए। केयर गिवर इंटरवेंशन के लिए उसकी एजुकेशन और सपोर्ट ग्रुप होने चाहिए। अच्छा, ये देखा गया है कि 10% लोगों को जो है वो डिप्रेशन होता है और 80% को डिप्रेसिव सिम्टम होते हैं और एग्रेशन भी इसके साथ होता है। फिर ये है कि वांडरिंग हेयर नेयर, आल्टर स्लीप पैटर्न, इनकॉन्टिनेंस, ग्रंटिंग एंड स्क्रीमिंग, ये चीजें उनमें कॉमन होती है। ये हेलुसिनेशन और डिल्यूजन अप टू 50%, 10 to 50% पेशेंट्स में देखे गए हैं और उसको फिर इलाज की जरूरत होती है। केयर गिवर इशू क्या है? फैमिली केयर एक्सपीरियंस इंक्रीज बर्डन एंड ओवरऑल डिस्ट्रेस as the disease progress and eventually leave the patient completely dependent upon others. ये ऐसे ही है कि जिस तरह माँ के पेट से बच्चा आता है, टोटली डिपेंडेंट होता है, उसको रोना भी नहीं आता, 1 महीने तक उसके आंसू नहीं होते बच्चे के। इसी तरह से इस खास पर अल्जाइमर के केस हैं तो उसमें फिर बड़ा मुश्किल होता है। नीड जो है वो बड़ी जरूरी है केयर गिवर की। हम कहते हैं कि थोड़ी सी नजर अगर आप पेशेंट तो लेकिन केयर गिवर पे भी जरूर नजर रखें। केयर गिवर्स आर two types of, one informal caregiver which include family members, friends and neighbors. ये हमारे मुल्क की बड़ी खुशकिस्मती ये है, मोहल्ले वाले साथ आ जाते हैं, उससे पूछते हैं कौन है, मोहल्ले वाले बताते हैं। तो ये एक बड़ी हमारी एक जबरदस्त हमारा समाजी असासा है कि लोग जो है फैमिली और फ्रेंड्स और मोहल्लेदार जो है, और मोहल्लेदार पे बता दूं कि मोहल्ले वाले की इतनी वह अहमियत है कि शायद उसको जायदाद देने में से भी हिस्सा देना पड़े। और फॉर्मल केयर गिवर कौन है? जो नर्स है, डॉक्टर है, वो है। The caregiver of mental illness women are predominantly best caregiver. मैं एक जानता हूँ अपने, अब तो फौत हो गए, हमारे टॉप क्लास के फिजिशियन थे, उसकी बेटी हर जुम्मे के दिन, वहाँ छुट्टी होती थी, जद्दा से आती थी, उसका खाना चीजें बना के वापस चली जाती थी 2 दिन बाद। तो 2 दिन के लिए वो जद्दा से आती थी और वो जो थे खुद साहब जो है अयूब खान के फिजिशियन भी थे। मैं भी, मुझे हर संडे वो मैं भी उससे मिलने जाता। Female are good caregiver and इस पे हमने अपने हॉस्पिटल में एक रिसर्च की। अच्छा, उससे पहले ये था कि
जो केयर गिवर की वेबसाइट पे देखा गया कि इसके हिट 2000 we were talking about the impact on caregiver. So they are emotionally stressful, sleep interruption of the physical strain, financial hardship. So these are the various things that can happen to a person who is caring for a person with dementia. And how the way to help family caregiver cope with the burden. Mental health professional can identify the burden. सबसे पहले उसकी identification है caregiver और patient. Early stage पे अगर intervention हो जाए तो इतने शदीद हालत में जो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं वो नहीं होगा. And educate caregiver कि वो किस बीमारी क्या है और किस तरीके से उसको इंजरी से बचाना है, दवाई कैसे खिलानी है, और कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया तो क्या है करना है. और कुछ चीजें बगैर दवाइयों के भी ठीक हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पर जो हमने अगर कहा कि वो अगर हाथ पकड़ के छोड़ नहीं रहा है तो फिर बजाय ये कि हम बहुत सारी दवाइयां दें उसको उसी की तरफ ढीला छोड़ दें. और family based intervention are effective in reducing relapse rate and negative impact of psychosis and caregiver. दूसरा मुझे याद है कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो उससे मेरी एक बार बात हो रही तो मुझे कहा कि जो उनकी जो सास थी वो तकरीबन काफी एज की थी, 100 से थोड़े से कम साल होंगे, तो नहीं बहुत सारी मेडिकेशन पे. मैंने कहा नहीं, इनको स्लोली आप लोग बताएं कि अम्मा जी आपने उठना है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग स्लो है. तो उसने मुझे शाम को फोन किया कि इसका बड़ी इफेक्ट हो गई, अभी बिल्कुल ठीक हो गई. मैंने कहा आप लोग स्पीड से बोलते थे, वो प्रोसेसिंग नहीं कर रही थी. तो कहने का मकसद है उनको बच्चों की तरह डील करना पड़ेगा, जैसे बच्चों के साथ हम स्लोली बोलते हैं, क्योंकि उनका रैम काम नहीं कर रहा होता है, तो लिहाजा उनकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो है. तो कम्युनिकेट, मिसाल के तौर पर कहें पैर उठा लो, नहीं उठेगा, पैर ऊपर रखें, या आपने अभी चलना है. मैंने देखा कि एक बार मरीज को ऐसे खींचेंगे तो वो नहीं खींचनी थी, उसको अगर बताया जाए कि आपको वॉशरूम लिया जाया जा रहा है तो आराम आराम से बताएंगे, समझ में आ जाएगा, फिर वो कोऑपरेट करते हैं. तो इसमें जैसे कि बताया कि एजुकेट केयर गिवर, एम्पावर केयर गिवर एंड एंगेज देम इन ट्रीटमेंट. ये हमने एक पिछले साल से एक प्रोग्राम 2020 में शुरू किया हमने. हम एक छपवाया है मेमोरी फर्स्ट एड. हमारा ख्याल ये था है अभी भी कि जो लोग वहां से घर से लाए जाते हैं उसको बजाय वो लाने के, हमारा जो बीएससी लेवल का होगा नॉन मेडिकल ग्रेजुएट, वो उसको हम ट्रेन करेंगे और उसको हम बताएंगे कि आया इस बंदे को अस्पताल. पाकिस्तान का कंट्री डायरेक्टर मैं हूं. हमने प्लान किया है कि 100 लोगों को ट्रेन करेंगे. और इसके साथ साथ हमने एक और काम किया कि जिन्ना हॉस्पिटल में हमने एक गोल्डन क्लिनिक खोला, गोल्डन एज क्लिनिक. गोल्ड क्यों? वो इस तरीके से कि ओल्ड इज गोल्ड. अगर हम कहते हैं उम्र रसीदा बूढ़े तो नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड लाइक दिस. तो हमने इस पे किताब भी लिखी, एक जो इंटरनेशनल बुक है डिमेंशिया पे. तो जब मैंने नॉर्मन सार्टोरियस से जब बात की तो ही वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो भी ओल्ड एज के हैं. ये हमने इनॉग्रेट किया मेमोरी फर्स्ट एड क्लिनिक और जिन्ना हॉस्पिटल में हारून साहब के हाथों. और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इसमें हमने किताब ही लिखी, डिमेंशिया, ऑक्सफोर्ड ने छापी है. उसमें एक चैप्टर हमने लिखा है कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है, और उसमें गोल्डन एज का जिक्र किया है. अब सवाल ये पता है कि लीगल इश्यूज क्या है. सबसे पहले असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस. ड्राइविंग लाइसेंस क्या उनसे लेना चाहिए नहीं, क्योंकि खतरनाक हो सकता है उनके लिए या नहीं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अगर गड़बड़ हो गई तो क्या सूरत हाल होगी. कॉन्सेंट टू मेडिकल इंटरवेंशन, खुद तो पता नहीं है उसको क्या है कि कौन सी दवाई दी जाए, रियोस्टिकमीन दी जाए या दूसरी दी जाए. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिहेवियर डिस्टर्बेंस, अगर उसने कोई ऐसी गलत हरकत की और किसी को नुकसान हुआ तो. और सेक्सुअल असॉल्ट, खासतौर पर इसमें ये होता है कि नौकरानियां या वो उस पर बड़ा वो कहती हैं कि इसने गलत हाथ छेड़ा, मुझे बहू हैं, उसको अंदाजा ही नहीं होता कि कौन है. तो और फिर क्या कहते हैं असॉल्टिवनेस, ये भी जरूरी है कि उसको किसी ने मारा या खुद किसी को खुद पीटा गया.
इथिकल इशू बड़ी ज़रूरी हैं कि what we can do and what we should do and how much and when. एंड फिर ये कि एक यहाँ पे एक इशू है मेरे हमारे एक अब तो दुनिया से चले गए, मुझे बार बार कहते थे किस अमेरिका के किस उसमें जो है मर्सीफुल डेथ जिसको हम यूथनेसिया कहते हैं वो अच्छा होता है, मैं जाना चाहता हूँ। मैं वो कहता कभी नहीं, आप नहीं जाएंगे। उसको आखिर तक हमने रोका और नहीं किया खैर से। तो ये भी है कि मर्सीफुल डेथ जिसको यूथनेसिया कहते हैं उसका बड़ा इंटरनेशनल डिबेट है। फिर इसको फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड भी कहते हैं। कंफर्ट केयर, पार्टिसिपेशन रिसर्च में क्या उनको डाल सकते हैं नहीं दवाई से, खासतौर पर इन्फॉर्म कंसेंट कैसे हो एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस कैसे हो। अब आखिर में ये 2-3 स्लाइडें हैं कि लाइफ इज नॉट कंप्लीट विदाउट ओल्ड एज, द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग एंड द रेडियंस ऑफ मून आर गुड बट द ट्रैंक्विलिटी ऑफ इवनिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यानी सुबह की किरणें और जो उसकी कमर जिसको हम कमर की जो रेडियंस है या वो हैं वो तो बड़ी अच्छे हैं, लेकिन शाम की किरणों का अपना मजा है। So similarly for complete life the perfect pattern include old age as well as youth and maturity. Old age has its pleasure which though different are not less than the pleasure of youth, जिसमें आप अपने बच्चों को, नवासियों को, सबको देखते हैं। ये एक सारे सिस्टम को हमने डिमेंशिया के लिए बताने की कोशिश की है कि एक मॉडिफाइंग फैक्टर जो मैडम फौजिया ऑलरेडी बता चुकी हैं। इसमें अगर आप नीचे देखें पेशेंट फैक्टर और कि उसके साथ कोमार्बिडिटीज क्या हैं, केयर गिवर फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर कि सेफ्टी इश्यूज क्या हैं, नेबरहुड कैसे जाएंगे, ये सब। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस स्लाइड को आप देखें कि आपको इसमें कितने उम्र की खातून नजर आ रही है। ये हमारा परसेप्शन है, उसकी ब्यूटी नहीं देख पाते। अगर आप देखें ज्यादा लोगों को ये क्या नजर आ रही है, बूढ़ी नजर आ रही है या वो यंग है। तो ये अगर देखा जाए कि शी इज अ यंग लेडी बट ऑल्दो शी कैन यू कैन सी ओल्ड एज, 90 ईयर्स की ओल्ड की भी इसमें नजर आ रही है और 25 साल वाली भी। तो ये हम अपनी एंगल को चेंज करना है कि ओल्ड एज के लोगों की खूबसूरती को हम जांच सकें, उसको परसीव कर सकें। इट इज आवर moral obligation to promote unconditional positive regard for elderly people, and treating elderly patient with loving care should also be a pleasure. अब मैं ये आखिरी स्लाइड है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जनरल ऑफ पाकिस्तान साइकेट्री सोसाइटी का मैं चीफ एडिटर हूँ। आप लोग ऊपर वाले लिंक पे जाएंगे, ये खुल जाएगा और उसकी पे हर चीज फ्री है, अपलोडिंग वोडिंग सब चीज फ्री है। तो okay, anyhow, with this I'll end my talk and thank you very much for your attention and concentration, and hopefully हम पाकिस्तान में अपने रवायात को और इस्लामी उसको बरकरार रखते हुए बूढ़ों का खिदमत भी करें और उनके इलाज खुशी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Iqbal Afridi, for such a nice and informative presentation. With this, I would like to add that I'm working in Department of Psychiatry, Dow International Medical College, और वहाँ पे एक नोवल मशीन है जिसका नाम है ट्रांसक्रेनियल पल्स स्टिमुलेशन, जो फर्स्ट मशीन है पूरी दुनिया में 25 फेब 2021 में स्विट्जरलैंड में इंस्टॉल हुई थी, और एशिया में वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे ये मशीन इंस्टॉल की गई है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। और इस इदारे में अभी हमारे पास करंटली रिसर्च भी चल रही है, द इम्पैक्ट ऑफ दिस मशीन ऑन डिमेंशिया। बेसिकली अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए है। अपनी नौयत की पूरी वर्ल्ड में ये 3 से 4 मशीन इंस्टॉल हैं और अभी हमारे पास इस मशीन का ट्रायल भी चल रहा है। तो अभी तक जितने 32 पेशेंट हमारे पास इनरोल हो चुकी हैं अल्जाइमर के, उनमें काफ़ी प्रोमिसिंग रिजल्ट आया है। बिसाइड डिमेंशिया कुछ पेशेंट्स में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की इंप्रूवमेंट भी हुई है। तो इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी इसके रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हो जो कि सीवियर डिमेंशिया के साथ हों, नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसको नाम कहते हैं ट्रांसक्रेनियल पल्स स्टिमुलेशन, आप हमारे इदारे डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में भेज सकते हैं।
With this, we are moving toward question and answer session. तो सबसे पहला सवाल है डॉक्टर फौजिया के लिए, how do you approach pseudo dementia from Alzheimer's? Okay, let me put this on. अच्छा जी, how do we differentiate pseudo dementia from Alzheimer's? सबसे पहली चीज जो है, आप लोगों को मिनी मेंटल एग्जाम करें, एंड उसमें आप ये देखेंगे कि सूडो डिमेंशिया में ना अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है. They're not even trying. Actually डिमेंशिया वाले होते हैं, they try, बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा सही हो जाए जवाब. यहाँ पे जो है ना, ये कोशिश ही नहीं करे, बस यूं करके गलत कर दिया और ये किया और उससे उनका स्कोर हाई हो गया. ये यूजुअली सूडो डिमेंशिया हम वो कहते हैं कि जो डिप्रेस्ड होते हैं पेशेंट्स, जो लिस्टलेस हो गए, जिनका उकता गए हैं और उन्होंने कुछ डिप्रेस्ड हैं बेसिकली. तो डिप्रेशन रिलेटेड जो मेमोरी लॉसेस होते हैं उनको हम सूडो डिमेंशिया कहते हैं, बिकॉज जब हम डिप्रेशन को ट्रीट कर देते हैं तो वो मेमोरी लॉस खुद ब खुद खत्म हो जाता है. सो दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट सूडो डिमेंशिया फ्रॉम डिमेंशिया. इसी क्वेश्चंस का मैं साइकियाट्रिक पर्सपेक्टिव जानने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर इकबाल अफरीदी को कि वो साइकियाट्रिकली किस तरीके से सूडो डिमेंशिया को डिफरेंशिएट करते हैं अल्जाइमर से. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि होता ये है कि अक्सर मेडिकल स्टूडेंट आते हैं कि मेरी याददाश्त खराब है, मुझे डिमेंशिया तो नहीं हो रहा है. तो देयर इज अ गोल्डन रूल. If somebody is complaining of his memory deficit, it means he or she is not suffering from true amnesia. When other people are noticing his or her deficit, that means it's really an actual dementia or amnesia है. अच्छा, होता ये कि मरीज या घर वाले आते हैं और खुद कहते हैं कि याददाश्त, तो सूडो का मतलब होता है फाल्स. सूडो डिमेंशिया मतलब फाल्स डिमेंशिया, और ये डिप्रेशन से मुतरादिफ है कि जब डिप्रेशन पे मैंने 2008 में सेस शेड्यूल में जब पहली प्रेजेंटेशन दी कि डिप्रेशन इज नॉट मेरली एन इमोशनल डिसऑर्डर, इट आल्सो डिस्टर्ब कॉग्निशन. अब जो है कॉग्निशन का देखा ये गया है कि ठीक ठाक कंपोनेंट है, और हमने इस पे रिसर्च भी की है, इंटरनेट पे मौजूद है कि 63% ऑफ दोज हु आर डिप्रेस्ड और कभी दवाई नहीं ली गई थी, उनको डिमेंशिया के, याददाश्त के, अटेंशन कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम थे. तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि 2 सवाल जरूर पूछे जाएं हर मरीज से, चाहे वो याददाश्त की सूरत में हो, कि क्या पिछले 2 हफ्ते से आपकी तबीयत उदास, नाउमीद या मायूस रही है. नंबर 2, क्या पिछले 2 हफ्ते से आपकी शौक, दिलचस्पियां, लज्जत या खुशी में कमी आई है. अगर हाँ है तो आप डिप्रेशन को जरूर असेस करें. तो सूडो डिमेंशिया इज एक्चुअली a variety of depressive disorder which present with memory and cognitive disturbance. Thank you very much, sir. Now there is another question. What about dementia in children and the role of tonics of brain tonics? I would like to request Professor Dr. Khalid Mahmud Khan, consultant physician and gastroenterologist, sir, put some light on this question. पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. फौजिया, आपकी एक्सीलेंट टॉक थी और यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन अ वंडरफुल वे. देन प्रोफेसर Iqbal Afridi sahab, and he has covered both legal as well as ethical issue regarding caregiver assistance. जहाँ तक इसका है, मैं पहले अपना शेयर कि my father died 2 years back at the age of around 99. तो मुझे याद है कि एक दिन मुझे फोन आया घर से कि जी अब्बा जी की तबीयत नहीं ठीक, एंड आई वेंट देयर एंड ही वाज लिस्टलेस. एंड जो उन्होंने उस दिन हमने मल्टीबायोटा और ये वो थोड़ा सा फ्लूइड दिया, उसके बाद उठ के बैठ के जो उन्होंने वो सिगरेट पिया, तो मुझे आज भी वो उनका वो सिगरेट पीना याद है. वो ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा है. तो सर ने एक बात की, I'm a physician, मैं शायद आपके उन सवालों का जवाब तो उस तरीके से ना दे सकूं जो है, लेकिन जो मैंने वहाँ पे जो मेरी फीलिंग हुई, और मैं अक्सर अपने पेशेंट से, क्योंकि बीइंग फिजिशियन हमारे पास भी लोग आ जाते हैं कि जी अब्बा जी सवेरे रोटी तो इन्होंने याद नहीं होंगी और 1965 की जंग दी गल्लां कर. तो मैं कहता हूँ कि भाई इनका जो एरिया है, जो ब्रेन का एक एरिया है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जिसमें मेमोरी रजिस्टर्ड होती है, इनकी वो मेमोरी, इनको पुरानी बातें याद होंगी. और हम तो उनके लिए एक कप रखते हैं उनका सामने अब्बा जी का,
तो आपने जब चाय देनी है तो कप सामने रख छोड़े, ताकि दोबारा जब ये मांगे तो ये यही कहेंगे कि मैनू चाय तो दी नहीं, तो मुझे चाय किसी ने नहीं दी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी चीज़ें सामने कई दफ़ा उनको रजिस्टर्ड कराने के लिए। दूसरा, जैसे हमने बच्चे की बात की, डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छे तरीके से कि जी बच्चा जब माँ के पेट से आता है तो उसके लिए हम उसकी ट्रेनिंग के लिए सब कुछ करते हैं। इसी तरह जब हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, एंड दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय ओन होम, कि वो जो अब्बा जी को हम लोग करते थे कि वो कई दफ़ा बैठते थे, वो कहते थे मतलब हम खाना खा रहे हैं, अभी वो खाना खा के थोड़ी देर, मुझे नहीं खाना देना। अब वो भूल जाते थे, उनकी शॉर्ट मेमोरी इतनी। तो फिर जब हम कहते थे आपने खाना खा लिया, कहते अच्छा अच्छा ठीक है। दूसरी बात है कि कई दफा एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एंड एट दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दीज पेशेंट। अब मैं आता हूँ मैडम के सवाल की तरफ, जो उन्होंने कहा कि जी ये जो प्रोबायोटिक्स का रोल है, आई डोंट थिंक सो कि दे हैव टू मच रोल। ठीक है, ये मैं जैसे बहुत सारी अद्वियात दी जा रही हैं, जैसे जिनको बायलोबा की भी बात की जाती है, ये ऐसे ही है जैसे हम मल्टीविटामिन खाते हैं। ये जितनी भी अद्वियात हैं, दे डोंट हैव एनी साइंटिफिक रोल में। आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि अभी इनका कोई प्रूवन रोल है। मे बी इन नियर फ्यूचर इनका रोल आ जाए। अभी तो हमारे पास यही बड़ी जैसे अभी मैं इस पे बड़ा खुश हुआ कि मैंने सुबह पढ़ रहा था तो टीपीएस की बात की, एंड आई एम हैप्पी कि डॉक्टर अनिल ने वही बात की कि हमारे पास ये सेंटर, मैं सुबह देख रहा था, मैं यार पाकिस्तान में भी ये होगा कहीं। तो अभी उन्होंने जैसे कहा कि जी वी हैव अ सेंटर, और जिसमें अराउंड 30+ पेशेंट दे आर मैनेजिंग। सो हैट्स ऑफ टू यू सर कि यू हैव देयर, we don't have any center here in Lahore right now, and hope so कि near future कि हमारे पास भी ऐसा कोई सेंटर लाहौर में हो। Though we have a wonderful psychiatrist, हमारे पास हैं प्रोफेसर साद बशीर हैं, हमारे पास आफ्ताब साहब हैं, और भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। So with that, once again I would like to thank Genix Pharma, Dr. Anil, Dr. Fowzia and Dr. Iqbal. Thank you very much for wonderful talk. Thank you very much, Dr. Khalid, for your nice words. सर मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि जो टीपीएस मशीन है वो एशिया में सिर्फ हमारे पास है, और इस वक्त हमारे पास 2 पेशेंट्स की रिक्वेस्ट आई है इंडिया से, वो ट्रीटमेंट के लिए हमारे डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं। तो जो लीगल वे है उसके थ्रू आएंगे इंशाल्लाह, उनके भी रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं हमारे पास, हम ऑब्वियसली सबको टेकन नहीं कर पाएंगे। मैं इसमें से कुछ कोलीग्स ने हमसे कुछ स्केल्स वगैरह मांगे हैं, वो हम इनको ईमेल कर देंगे। रिवेस्टिक मीन के मुतालिक एक सेपरेट क्वेश्चन है, वो मैडम से मैं भी जानना चाहूँगा। अदरवाइज बाकी क्वेश्चन साइड इफेक्ट्स के हैं, वी आर सॉरी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, अदरवाइज हम तमाम क्वेश्चंस को रिप्लाई देते हैं। एक क्वेश्चन है, कैन वी एड रिवेस्टिक मीन विथ मेमेंटीन और मेमेंटीन विथ रिवेस्टिक मीन इफ रिक्वायर्ड? डॉक्टर फौजिया प्लीज। जी जनाब, जैसे मैंने बताया कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स के साथ स्टडीज जो हुई हैं वो donepezil के साथ हुई है मेन, but it's the same mechanism of action, and yes, there is an added benefit because it has a different mechanism of action. Now, if you add one acetylcholinesterase inhibitor with another acetylcholinesterase inhibitor, it doesn't have a lot of effect, but there will be no benefit. But adding memantine, which is a glutamatergic drug with different mechanism of action, it is very good, and it has shown benefit, and yes, you can do that. Thank you very much, Dr. Fowzia, for nice presentation. Honorable Professor Iqbal Afridi Sahab, Professor Dr. Khalid Mahmud, Genix Pharmaceutical, for providing platform for such an informative, nice, brief presentations and discussion. Thank you everyone for joining us. Hopefully in future we will meet again. Thank you. Have a good day. Have a nice weekend. Take care. Allah Hafiz.